Okay, so hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So basically, it's our lecture 10 of our course Number Theory, in which I am providing you proper notes, question practice, so that you can score good in IIT JAM, CSIR NET, and GATE examinations. Basically, myself Ayush Gupta, I am gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So let's start today's lecture. So these are the topics we are going to cover today. The first topic is linear congruence. See, in the last lecture, we have seen that what is the meaning of congruence, and now we will see what is the meaning of linear congruences. Then we will see the existence of solution in linear congruences. We will see what is the meaning of linear independent solutions and the number of solutions in linear congruences. And we will also see the trick to solve the inverse in linear congruence. Okay, so right on the first heading, linear congruence. Linear congruence, इसमें लिखिए ax congruent b modulo n is called linear congruence. Linear congruence modulo n, दैट इज कि जब यहाँ पे हमारे पास वर्ड आ गया है लीनियर, विच मीन्स हमारे पास जो भी वेरिएबल होगी उसकी पावर 1 होनी चाहिए. तो अगर मैं यहाँ पे कोई रिलेशन लिखता हूँ लाइक ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एन, सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर कॉन्ग्रुएंस. फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल लेते हैं इसका. जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 2x congruent 5 modulo 7. So this is a linear congruence. For example, 5x congruent 7 modulo 9. It is also a linear congruence. Okay, so write down our next second heading, which is existence of solution. Okay, the second heading is existence of solution in linear congruence. Linear congruence. ओके, सो राइट डाउन इन दिस हेडिंग दैट हम कब कहेंगे कि हमारी लीनियर कॉन्फ्लुएंस के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है. सो राइट डाउन हियर ए एक्स congruent b modulo n has a solution if and only if the GCD of a comma n divides b. मीन्स अगर मैं यहाँ पे a एंड n की GCD को लूँ, मीन्स GCD ऑफ a comma n, और अगर ये डिवाइड करता है हमारे b को, which comes from here, then we will say that solution exists. For example, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 2x congruent 5 modulo let's suppose 10. तो क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? सो लेट्स सी, वी विल चेक इट नाउ. द जीसीडी ऑफ 2 कॉमा 10, सबसे पहले हम निकालते हैं. तो 2 कॉमा 10 हमारे पास आता है, इट इज 2. नाउ if I see here, then 2 does not divides 5, which implies that 2x congruent 5 modulo 10 has no solution. Solution not exist. फॉर एग्जाम्पल, एक मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर मैंने कहा कि 2x is congruent to 6 modulo 10, then in this case क्या solution exist करेगा? Let's see. तो यहाँ अगर मैं निकालता हूँ GCD of 2 comma 10, so it will be 2, and 2 basically divides 6, so it is true. Hence now
2x congruent 6 modulo 10 has solutions. So in this case we will say that when the solution exists, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास solution exist नहीं करता है एंड यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पर मैं अगर पूछूं कि हमारे पास कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो अभी हम आगे लेक्चर में देखेंगे, बट दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें ये निकालना आना चाहिए कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा. ओके, सो अवर आई थिंक थर्ड टॉपिक इट इज linear independent solutions. So write down the heading. The third heading is linear or linearly independent, or use the word linear, it is better, that linear independent linear independent solutions under modulo n. Okay, so write down this heading, that linear, what is the meaning of linear independent solutions under modulo n. So इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर मैंने कहा z6, तो z6 के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे विच इज लेस देन 6. सो 0 1 2 3 4 एंड 5, हमारे पास ये 6 एलिमेंट्स हमारे पास z6 में आते हैं. ओके, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दैट 2 बिलोंग्स टू z6. तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है. अगर मैं बोलता हूँ कि 4 बिलोंग्स टू z6, विच इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज 2 and 4 बिलोंग्स टू z6, बट अगर मैंने यहाँ पे कहा कि 6 बिलोंग्स टू z6, तो ये तो गलत हो जाएगा, दैट 6 टू z6 में बिलोंग करता ही नहीं है. बट वेट, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बिकॉज ऑफ दिस 6 वी कैन राइट हियर 6 मॉडुलो 6. एंड हाउ वी कैलकुलेट दिस, तो 6 मॉडुलो 6 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 6 मॉडुलो 6 का मतलब होता है कि अगर मैं 6 को 6 से डिवाइड करूं तो इसका जो भी रिमाइंडर आए वही रिमाइंडर इसकी वैल्यू हो जाती है. तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 0, एंड वी नो दैट 0 तो हमारे z6 में बिलोंग करता है, विच मीन्स 0 बिलोंग्स टू z6, यानी कि 6 मॉडुलो 6 हमारे पास z6 में बिलोंग कर जाएगा विच इज 0. तो यानी कि अगर मैं आपसे अब पूछता हूं कि इन z6 0 एंड 6 ये तो आपस में इक्वल हो गए, लेकिन इस केस में हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मॉडुलो 6 का यूज करना पड़ेगा, जो कि हर नंबर के साथ ऑटोमेटिकली लग जाएगा अगर हम किसी भी zn का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, सपोज 7, आई हैव टेकन 7, तो क्या 7 मॉडुलो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 6 से डिवीजन करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है, बट इसको हम एक ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 7 था, तो मैं क्या करता हूँ, इस 6 को मैंने 7 में से माइनस कर दिया, सो वी कैन राइट 7 minus 6 modulo n. So from here what I'm getting, it is 1 modulo 6, and definitely 1 belongs to z6. So which means 7 is also belongs to z6 but with modulo 6. So those numbers which are independent, they are linearly independent. मीन्स अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हमारे पास जो नंबर्स z6 में हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5, दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. बट अगर मैं बोलता हूँ कि 6 7 8 9 10 11 या फिर 12 13 14 15 16 17 एंड सो ऑन, अगर मैं इस तरह से नंबर्स लिखूं, तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारे पास 0 था
ये 0 ही तो यहाँ पे 6 का काम कर रहा है, जो 1 था वो हमारे पास 7 का काम कर रहा है। सिमिलरली 2 8 की तरह काम करेगा, 6 9 की तरह काम करेगा, 4 10 की तरह, 5 11 की तरह काम कर रहा है। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो 12 ऊपर वाले की तरह काम करेगा, 13 इस तरह से, 14 इस तरह से। तो अगर मैं कितने भी यहाँ पे नंबर्स लिखता जाऊं, हर एक नंबर हमारे इन्हीं 5 नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है जो कि हमने ऊपर लिखे हैं, 0 to 5 6 नंबर्स, 0 1 to 5 पर ही हर नंबर डिपेंड कर रहा है। यानी कि ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो गए, और ये सभी वेक्टर्स हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो गए जो इन पर डिपेंड करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट कि हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने कहा Z3 की बात करते हैं, Z3 में कैसे एलिमेंट्स आएंगे बेटा, 0 1 एंड 2। तो यहाँ पे हमारे पास ये एलिमेंट्स आते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि 4 हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, तो क्या 4 इसमें बिलोंग करेगा? तो अब आपको मालूम है कि हम लोग क्या देखते हैं, 4 मॉडुलो 3। सो 4 मॉडुलो 3 का मतलब क्या होता है कि जब मैंने इसको डिवाइड किया तो इट बिकम्स, और वी कैन राइट 4 - 3 मॉडुलो 3। सो इट इज नथिंग बट, okay, so 4 modulo 3 mod 3, it can be written as 1 mod 3 which belongs to Z3। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, द क्वेश्चन इज 4 2 and 1 is linearly independent और linearly dependent। तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या होगा? सी, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1 की, तो 1 मॉडुलो 3 तो हमारे पास इंडिपेंडेंटली Z3 में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2 की, सो 2 मॉडुलो 3 इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ये भी हमारे पास Z3 में आ रहा है। बट 4 हमारे पास Z3 में नहीं आ रहा है, तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 4 मॉडुलो 3 कैन बी रिटन एज 1। यानी कि जो 4 है वो तो 1 पे डिपेंड कर रहा है, तो हेंस जो हमारे पास पूरा सेट बन गया, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बेसिकली 4 इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर 4 लीनियरली डिपेंडेंट है एंड 2, 1 are linearly independent, but due to this 4 our set becomes linearly dependent, which means 4 to 1 is linearly dependent. Clear? So basically it is the concept that how can we understand what is the meaning of this word, means linearly independent. Clear? Okay, so write down the next heading, and our next heading is number of solutions. Number of solution in linear congruence. Okay, so write down here, basically if ax is congruent to b modulo n has solution, if it has solution, that is, और हमारे पास जब भी लीनियर कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसमें सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारे पास जीसीडी ऑफ a कॉमा n डिवाइड कर रहा हो b को, देन द number of solutions is equals to the GCD of a comma n। मीन्स जिस नंबर से हम इसको यहाँ पे b को डिवाइड करते हैं वही हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ओके, सो विल सी वन एग्जांपल ऑफ दिस कि ये हमारे पास किस तरह से ट्रू होगा। ओके, सो राइट डाउन वन एग्जांपल।
बट बिफोर द एग्जाम्पल हम मैं आपको इन्वर्स का मतलब भी बता देता हूँ, क्योंकि इन्वर्स की प्रॉपर्टी वहाँ पे यूज आने वाली। सो राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग ऑल्सो, दैट trick to find the inverse under congruence, कि अगर मुझे कॉन्ग्रुएंस गिवन है और मुझे इनवर्स निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। तो इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज कि अगर हम बात करते हैं किसी भी एक नंबर की, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज इट इज 15x कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 4। क्लियर? इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 इनवर्स मॉडुलो 4। सो बेसिकली हमें इसकी वैल्यू चाहिए। हाउ टू फाइंड द इनवर्स अंडर द कॉन्ग्रुएंस, सी इट इज द इनवर्स वैल्यू अंडर द कॉन्ग्रुएंस। तो हमें इससे बेसिकली सॉल्व करना सीखना है, और इसका हम एक ट्रिक देखने वाले हैं। सी इसके हम लोग कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि जब भी आपको कोई इनवर्स वैल्यू दे दी जाए, whenever you have any inverse value, then write down the solution here, like इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इस 15 इनवर्स को इधर ट्रांसफर करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 15x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4, and from here we can write basically 4 divides 15x minus 1. so अगर 4 इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि मैं लिख सकता हूँ 15x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो किसी नंबर के बराबर ही आएगा। लेट्स सपोज कि वो नंबर मैंने के ले लिया। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 15x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स के। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए आपको क्या करना है, आपको x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। जैसे कि मैंने अगर फर्स्ट वैल्यू पुट की, इफ आई हैव टेकन द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x, तो अगर मैंने यहाँ पे सपोज x की वैल्यू 1 पुट की, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज 15 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 के। तो क्या ये 4 का मल्टीपल आ रहा है, विच मीन्स इट इज 14। इट बिकम्स, एक्चुअली इट इज okay, so we can write here basically 14, and 14 is equals to 4k। तो क्या ये 4 का मल्टीपल है? नो no. अगर मैं यहाँ पे सेकेंड वैल्यू पुट करता हूँ, x की वैल्यू अगर मैंने 2 पुट की, तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, इट बिकम्स 30 माइनस 1 which is 29, and 29 is also not the multiple of 4k, so it is also not true। अगर मैंने यहाँ पे थर्ड वैल्यू पुट की, फॉर एग्जाम्पल 15 इंटू 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 3 ज़ा इट इज़ 45 माइनस 1, सो इट इज़ 44, एंड डेफिनेटली 44 इज द मल्टीपल ऑफ 4k। सो दिस वैल्यू इज ट्रू। तो यहाँ पे हम जिस पोजीशन पर हमें ये वैल्यू ट्रू मिलती है, उस पोजीशन को ही हमारा आंसर बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें थर्ड पोजीशन पर हमारी वैल्यू ट्रू मिली, तो जो x की वैल्यू थी विच इज 15 इनवर्स मॉड्यूलो 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। सी दिस इज द ट्रिक, दिस इज द trick to find the inverse. Okay, so let's solve one more question to clear this topic, the inverse. Okay, suppose कि हमें given है gamma is equals to 12 inverse modulo 5, और हमें इसकी वैल्यू बतानी। तो solve, first of all you solve this by yourself and pause this video and solve this। Okay, now I will solve। see, so in this question we can write, जैसे ही हमने 12 को इधर ट्रांसफर किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 गामा which is congruent to 1 modulo 5। So from here we can write 5 divides 12 gamma minus 1, और अगर
5 इसको डिवाइड कर रहा है तो किसी k के बराबर आ जाएगा, विच मीन्स वी कैन राइट 12 गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5k। तो अब हमें देखना है कि गामा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या हमें कोई 5 का मल्टीपल मिल रहा है। जैसे कि अगर मैंने फर्स्ट वैल्यू चेक की, जब मैंने गामा की वैल्यू 1 रखा, सो इट इज 12 इंटू 1 माइनस 1 विच इज 11। 11 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5। सेकेंड वैल्यू अगर मैंने 2 पुट किया, सो इट इज 12 इंटू 2 माइनस 1 which is it is 24 minus 1 23। 23 is also not the multiple। अगर मैंने थर्ड वैल्यू पुट किया 3, so it is 12 into 3 minus 1, it is 36 minus 1 and it is 35। and yes, 35 is the multiple of 5। it can be written as 7 into 5, so it is multiple of 5, it is true। so the third position will be our inverse, so gamma will be equals to 3।